Hello officers, welcome to UPSC Revise. Welcome to another session of the Hindu revision for 12th July. I hope आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा और चलिए एक एक करके सारे टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं. So let's start with our first topic which is related to GS पेपर 1. बहुत रेयर होता है कि न्यूज़पेपर में GS पेपर 1 से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स या कुछ टॉपिक्स आते हैं और जब भी आते हैं आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन उन्हीं में से ही बनेगा. बिकॉज जीएस पेपर का कंटेंट जो है वो काफ़ी स्टैटिक है इन नेचर और जब भी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर से तो वो इन्हीं कुछ चुनिंदा टॉपिक्स में से आते हैं तो इनको रिवाइज करना अच्छे से. तो ये आर्टिकल क्या कह रहा है? सो इंडिया टू होस्ट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैन्युस्क्रिप्ट्स हेरिटेज ऑन सितंबर 11 टू 13. सो इंडिया क्या करने वाला है? इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होस्ट करने वाला है किसके बारे में? मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज के. ठीक है. It is the first international manuscript heritage conference and it will be attended by global scholars, leaders and various cultural custodians which are related to those subjects. The title of this conference is Reclaiming India's Knowledge Legacy Through Manuscripts Heritage. And this particular conference is launched under the Gyan Bharatam mission. So this conference will also commemorate Swami Vivekanand Chicago's address. वही brothers and sisters वाला address वो वाला यहाँ पे commemorate किया जाएगा and it will symbolize India's intellectual and spiritual global visions. So this particular conference is launched for reviving and expanding the visions of the National Mission for Manuscripts which was launched in 2003. जो ज्ञान भारतम मिशन है it was part of the 2025-2026 budget. ठीक है. और अब इस ज्ञान भारतम मिशन के अंदर ये जो कॉन्फ्रेंस है वो की जा रही है. अब किसको रिवाइव किया जा रहा है? इट इज रिवाइविंग द नेशनल मिशंस फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स जो 2003 में लॉन्च हुआ था. सो नेशनल मिशंस ऑन मैन्युस्क्रिप्ट्स 2003 में लॉन्च हुआ था और जो ये ज्ञान भारतम मिशन है इसको रिवाइव करता है. इसके अंतर्गत ये जो मैन्युस्क्रिप्ट इंटरनेशनल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस है ये कंडक्ट की जा रही है. द ज्ञान भारतम मिशन सीक्स टू प्रिजर्व, digitize, disseminate manuscripts knowledge. It will integrate it with the modern technology and foster a new generations of scholars and institutions to carry this legacy forward. तो बेसिकली इस ज्ञान भारतम मिशन के अंदर क्या किया जा रहा है? डिजिटाइज किया जा रहा है, प्रिजर्व किया जा रहा है मैन्युस्क्रिप्ट्स की जो डेटा है उसकी जो नॉलेज है. ठीक है. और एआई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से इसको फॉस्टर किया जाएगा बाई द फ्यूचर जनरेशन ऑफ स्कॉलर्स एंड इंस्टीट्यूशंस और जो इसको इस लेगेसी को जो है आगे लेके जाएंगे. द यूनियन कल्चरल मिनिस्ट्री हैज ऑल्सो इन्वाइटेड original research paper, original manuscripts, original research paper, original case studies and conceptual frameworks to be presented on these themes. Now एक बार रिवाइज करेंगे किसके बारे में टॉपिक था. इट वाज अबाउट द फर्स्ट इंटरनेशनल मैन्युस्क्रिप्ट कॉन्फ्रेंस titled Reclaiming India's Knowledge Legacy Through Manuscript Heritage. It was part of the Gyan Bharatam mission which was announced in the Union Budget of 2025 and 26. The mission, this Gyan Bharatam mission, this mission seeks to preserve, digitize and disseminate manuscript knowledge and also it will integrate it with the modern technology so that the coming generation, the future scholars will carry forward these legacies. Now moving on to topic number 2 which is related to the अस्त्र मिसाइल. ठीक है. क्या है ये अस्त्र मिसाइल इसके बारे में जानते हैं. द अस्त्र मिसाइल, द DRDO, that is the research the Defense Research and Development Organization along with Indian Air Force successfully conducted the flight test of the indigenously developed beyond visual range air to air missile that is the अस्त्र equipped with indigenous radio frequency seeker. और ये कहाँ से फायर किया गया है? सुखोई 30 फाइटर जेट से ये फायर किया गया है along the coast of Odisha. The missile destroyed the targets with pinpoint accuracy and all subsystems performed as expected, the ministry said. तो आप देखोगे दिस इज द अस्त्र मिसाइल. ठीक है. और ये सुखोई की जो है एयरक्राफ्ट की विंग है. दिस इज द अस्त्र मिसाइल जिसको यहाँ पे जो इसकी जो टेस्टिंग की गई है. अब इसके अंदर एक टर्म आती है दैट इज द BVRAAM. अब ये BVRAAM क्या है? इट इज फुल फॉर्म है इसका बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल. बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब क्या है? बियॉन्ड द विजुअल रेंज ऑफ पायलट, दैट इज बियॉन्ड 30 to 40 किलोमीटर. ठीक है. बियॉन्ड 70 लाइक 100 किलोमीटर पे अगर कोई टारगेट है
अगर कोई 100 किलोमीटर पे टारगेट है इस एयरक्राफ्ट से और यहाँ पे टारगेट है आपका, और पायलट को विजुअली नहीं दिख रहा है, विजुअल उसकी रेंज में नहीं है, बट विद द हेल्प ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी, विद द हेल्प ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड रडार्स जो कि यहाँ पे एयरक्राफ्ट में लगे हुए हैं, दे कैन डिटेक्ट दिस टारगेट एंड दिस मिसाइल इज केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग दैट पर्टिकुलर टारगेट जो दिख भी नहीं रहा है. That is the specialty of this missile, and this is indigenously developed by DRDO and Indian Air Force. अब BVR के बारे में बात हो रही है, तो इंडिया के पास कौन सा मिसाइल है? अस्त्र मिसाइल. यूएसए के पास कौन सा है? AMRAAM. यूरोप के पास कौन सा है? मीटियोर. रशिया के पास कौन सा है? R77. आपको ये भी याद रखना है. और सिर्फ इन 3-4 कॉन्टिनेंट्स या मतलब कंट्रीज के पास ही ये जो है BVRAAM टेक्नोलॉजी है और ये वाला मिसाइल है. प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, इवन मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन भी इससे बनाया जा सकता है. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. रिवाइज करेंगे एक और बार. अस्त्र का मतलब क्या होता है? इट इज अ संस्कृत वर्ड. इसका मतलब होता है वेपन. रेंज इसकी क्या हो जाएगी? 70 किलोमीटर प्लस. इट इज एन ऑल वेदर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, दैट इज BVRAAM. सरफेस टू एयर नहीं है, सरफेस से लॉन्च नहीं होगा, सी से लॉन्च नहीं होगा. इट इज एन एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम. ठीक है. इट इज इंडिजिनियसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय DRDO. द फर्स्ट एवर BVRAAM डेवलप्ड इन इंडिया. इट इज द फर्स्ट एवर BVRAAM which is developed in India and it can locate and track target at different altitudes as well. और कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करता है? बेसिकली इट यूजेस रेडियो फ्रीक्वेंसी. कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज करता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करता है. Now moving on to topic number 3, that is related to GS paper 3. टेस्ला टू मार्क फॉर्मल इंडिया एंट्री विद मुंबई लॉन्च. ठीक है, ये काफी पिछले 1-2 साल से न्यूज में था. फाइनली द डे इज हियर. द डेट इज जुलाई 15 जब टेस्ला इंडिया में लॉन्च हो रही है. द फर्स्ट इंडियन शोरूम विल बी इन मुंबई का बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ही लॉन्च कर रहे हैं. अब इसके बारे में सबको पता होगा. ठीक है, सबने इसके बारे में पढ़ा होगा. और यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर तो ये क्वेश्चन नहीं पूछने वाला कि भाई टेस्ला कहाँ पे लॉन्च की गई है, कौन सी सिटी में लॉन्च की गई है. ये सब यूपीएससी सवाल नहीं पूछता. बट यूपीएससी मेंस में सवाल पूछ सकता है. एंड यू कैन एक्चुअली कोट दिस टेस्ला एज एन एग्जांपल. कहाँ पे आएगा? चैलेंजेस एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, ये टॉपिक है मेंस का, ये मेंस का थीम है. यहाँ पे क्वेश्चन बताया जा सकता है. एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, वहां पे यू कैन एक्चुअली राइट दिस एज एन एग्जांपल कि भाई टेस्ला भी आया है, दिस इज ए रीसेंट एग्जांपल एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, ग्रोथ होगी, जीडीपी बढ़ेगी. ठीक है, यू कैन एक्चुअली कोट दिस एज एन एग्जांपल. क्वेश्चन आ सकता है ऑटोमोबाइल सेक्टर से. द इश्यूज in automobile sector, the ease of doing business in automobile sector, because Tesla ने claim किया है कि उनको काफी hurdles face करने पड़े to launch their company in India. So that is something you can write basically. So the challenges in policy making, इंडिया की तरफ से यू कैन राइट कि व्हाट आर द चैलेंजेस. क्यों हमने इतना ज्यादा टैक्स जो है वो टेस्ला पे लगाया जब उन्होंने बोला था कि हमको इंडिया में आके अपना प्लांट लगाना है या हमने टेस्ला इंडिया में लॉन्च करनी है. दीस आर द चैलेंजेस इन पॉलिसी मेकिंग. आपको हमेशा एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं सोचना है. यू हैव टू ऑल्सो थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉलिसी मेकर्स. आपको पॉलिसी मेकर्स बनना है. यू विल बी IAS, यू विल बी IFS इन द फ्यूचर. तो आपको उस तरीके से सोचना है. एंड द चैलेंजेस टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स. अब अगर टेस्ला इंडिया में आएगा, क्या टाटा को चैलेंज नहीं मिलेगा? टाटा की ईवीज को चैलेंज नहीं मिलेगा? महिंद्रा की ईवीज को चैलेंज नहीं मिलेगा? दीस आर इंडिजिनियसली डेवलप्ड ईवीज इन इंडिया. सो चैलेंजेस भी हमको मिलेंगे, बट हमको ये चाहिए भी. तो क्या एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है. इसलिए पॉलिसी मेकिंग इज अ टफ चैलेंज भाई. पॉलिसी मेकिंग इज नॉट इजी. पॉलिसी मेकिंग इज अ टफ टास्क और उसको अच्छे से करना रहता है. तो मेंस के पर्सपेक्टिव से यू कैन एक्चुअली यूज दिस टेस्ला कमिंग टू इंडिया एज एन एग्जांपल. सो नाउ मूविंग ऑन टू टॉपिक नंबर 4, दैट इज अगेन रिलेटेड टू जीएस पेपर 1. इसको नोट कर लो, इसको याद कर लो. विच इज रिलेटेड टू यूनेस्को. मराठा के जो फोर्ट सिस्टम है, दैट इसको यूनेस्को का हेरिटेज टैग मिला. मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स representing the extraordinary fortification and military system envisioned by the Maratha rulers. उस टाइम पे मराठा रूलर्स ने जो एनविजन किया था the extraordinary military landscape, फोर्टिफिकेशन करते थे. और उनका मराठों का ये स्टाइल था कि उन्होंने एक जगह पे सपोज यहाँ पे हाइट पे फोर्ट बना लिया, उनका ऐसा नहीं रहता था. व्हाट दे यूज्ड टू डू,
यहाँ पे हाइट पे फोर्ट बनाएंगे और छोटे छोटे फोर्ट से पूरे फोर्ट को फोर्टिफाई करेंगे। ये छोटे छोटे फोर्ट से इस पूरे फोर्ट को फोर्टिफाई करेंगे, पूरा एरिया अपने अंडर लेंगे। तो ये जो ये मराठा का जो ये लैंडस्केपिंग टैक्टिक्स थी और जो लैंडस्केपिंग सिस्टम था, द ट्रेडिशनल फोर्टिफिकेशन सिस्टम था, इसको यूनेस्को का जो हेरिटेज टैग मिला है, इसलिए ये आर्टिकल न्यूज में था। सो इट कंसिस्ट ऑफ 12 कंपोनेंट्स। 12 फोर्ट्स आते हैं इसके अंदर। सलहार फोर्ट आ गया, लोहगढ़ फोर्ट आ गया, खंडेरी फोर्ट आ गया, रायगढ़ राजगढ़ फोर्ट आ गया, ठीक है, प्रतापगढ़ फोर्ट आ गया, विजय दुर्ग आ गया। तो ये सारे फोर्ट्स आ गए हैं। नाम याद होते हैं तो ठीक है, नहीं याद होते हैं देन ऑल्सो इट्स फाइन, बिकॉज 12 नेम्स है। हो सकते हैं और भी आगे इसके अंदर इंक्लूड हो, तो सब याद रखना इट्स नॉट पॉसिबल। बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि फोर्ट्स आर फ्रॉम महाराष्ट्र एंड फ्रॉम तमिलनाडु एज वेल। अब ये मत सोच लेना कि भाई मराठा है तो फोर्ट्स महाराष्ट्र से ही होंगे, नहीं, मराठा का रूल काफी ज्यादा था, तमिलनाडु तक भी एक्सटेंड करता था। अभी यूनेस्को के बारे में जानते हैं। यूनेस्को क्या है, जिसको नहीं पता इसका फुल फॉर्म, यूएन इज बेसिकली अवर यूनाइटेड नेशन। ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशन, एस स्टैंड फॉर साइंटिफिक, सी स्टैंड्स फॉर कल्चरल एंड ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है यूनेस्को? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज यूनेस्को। अब यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है कोवेटेड, ठीक है, इसको कोवेटेड लिस्ट के अंदर डाला गया है। अब इसको क्यों बोला गया है? बिकॉज इट इज अ रेयर ऑनर एंड द कंट्रीज नॉमिनेट्स साइट, ठीक है, कंट्री जो है वो साइड नॉमिनेट करती है, बट स्क्रूटनी होती है, प्रॉपर स्क्रूटनी होती है, पूरा क्राइटेरिया होता है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। क्राइटेरिया का नाम है आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। तो ये आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू क्राइटेरिया को अगर कोई भी साइट फुलफिल करती है तभी उसको कोवेटेड साइट के अंदर डाला जाता है। दिस इज अ रेयर ऑनर जो यूनेस्को अपनी लिस्ट में डालता है। और इंटेंस ग्लोबल कंपटीशन होता है इन साइट्स के लिए, ठीक है, जब ये स्क्रूटनी होती है तो बहुत सारे, ऐसा नहीं कि एक ही साइट है और यूनेस्को को उस साइट पे डिसाइड करना है, ऐसा नहीं होता है। 3 4 5 6 10 15 साइट्स होती हैं फ्रॉम वेरियस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और वहां से वो डिसाइड करता है कि भाई कौन सी साइट को हम यूनेस्को का हेरिटेज टैग दें। तो इंटेंस कंपटीशन होता है यहाँ पे भी। और अगर एक बार ये टैग मिल गया तो इससे हमको क्या बेनिफिट होगा? इट विल बूस्ट द प्रेस्टीज, इट विल बूस्ट द प्राइड एंड ऑल्सो इट विल हेल्प इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। लोग आएंगे यहाँ पे, ठीक है, डेवलपमेंट होगी, यहाँ के लोकल्स का जो है वो बेनिफिट होगा। तो ये सब बेनिफिट जो है यूनेस्को हेरिटेज टैग का मिलता है। तो देयर आर टोटल ऑफ 3 लिस्ट जो यूनेस्को मेंटेन करता है। वन इज रिलेटेड टू कल्चर, अदर वन इज रिलेटेड टू नेचुरल एंड द थर्ड वन इज रिलेटेड टू मिक्स्ड। ठीक है, याद रहेगा ये टॉपिक। मूविंग ऑन टू अनदर टॉपिक, टॉपिक नंबर 5 विच इज रिलेटेड टू जीएस पेपर 3। वेस्ट बंगाल गियर्स अप फॉर रेयर अर्थ माइनिंग इन पुरुली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसके बारे में क्या है? द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्टिंग एडवांस एक्सप्लोरेशन इन दी पुरुली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये एडवांस एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए कर रहे हैं, बिकॉज रेयर अर्थ डिपॉजिट्स इनको यहाँ पे मिले हैं, स्मॉल क्वांटिटी में मिले हैं, बट फिर भी इट इज ऑफ पिवटल इंपॉर्टेंस। क्यों? बिकॉज हमारी जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर, इंडिया की नहीं, एज ऑफ पूरे वर्ल्ड की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है रिगार्डिंग दी रेयर अर्थ एलिमेंट्स और रेयर अर्थ मटेरियल्स को लेके। पूरे वर्ल्ड की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर पड़ गई बिकॉज उसने मोनोपोली जनरेट की है वहाँ पे। सो जितना भी मिलता है, कम मिले ज़्यादा मिले, जितना भी अमाउंट का रेयर अर्थ डिपॉजिट्स अगर हमको इंडिया में मिलते हैं तो हमारे लिए बेनिफिट ही है। कैसे? इंडिया विल रिड्यूस इट्स डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स essentially for the electric vehicles, essentials for the electronics, essential for the renewable energy technology। तो कितने कितने सेक्टर में ये रेयर अर्थ माइनिंग और रेयर अर्थ एलिमेंट्स कितने कितने वेरियस सेक्टर्स में ये इंपॉर्टेंस रखते हैं। और जो एक्सप्लोरेशन की जा रही है इट इज ऑफ अ G2 लेवल, और 2 ब्लॉक में की जा रही है। एक है करबी जो असम के डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, और यहाँ पे पुरुलिया जो कि वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। सो ये G2 स्टेज किया जा रहा है। स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। स्टेजेस क्या है ये? व्हाट इज दिस G2 स्टेज? क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे भी। सो G2 इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन। और ये जो टर्म है दिस इज बेसिकली कॉइन्ड एंड डिफाइंड बाय द क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन, दैट इज द UNFC, and this particular classification is followed by the IBM, that is Indian Bureau of Mines, and also the GSI, that is the Geological Survey of India। तो सिंपल भाषा में समझेंगे क्या है, बस एक कैटेगराइजेशन है।
अब इसी तरीके से 4 कैटेगराइजेशन में पूरे जो माइनिंग का जो फ्रेमवर्क है उसको, एक्सप्लोरेशन है, माइनिंग माइनिंग एक्सप्लोरेशन, उसको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहली स्टेज आती है G4। G4 में क्या होता है, इनिशियल ब्रॉड एरिया सर्वे होता है कि अच्छा ठीक है, इस वेस्ट बंगाल के इस पुरुली डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने को ये चांसेस है कि ये मिल सकता है, दैट इज दी G4 स्टेज। फिर हम आते हैं G3 स्टेज पे। यहाँ पे क्या होता है, रीजनल स्टडी की जाती है, एरिया को अच्छे से स्पेसिफाई किया जाता है, रीजनल स्टडी होती है, फील्ड डेटा लिया जाता है, कुछ सैंपल्स लिए जाते हैं यहाँ पे, उसके बाद उनकी यहाँ पे टेस्टिंग होती है और पता लगाते हैं कि यहाँ पे कितने मात्रा में ये सब चीजें हमको मिलेंगी। फिर आता है G2 स्टेज। यहाँ पे क्या होता है, जनरल एक्सप्लोरेशन, जिस स्टेज पे हमारे ये आर्टिकल न्यूज में था, दैट इज मॉडरेट डिटेल, आइडेंटिफाइज रिसोर्स पोटेंशियल। बेसिकली आइडेंटिफाई करता है रिसोर्स पोटेंशियल को कि भाई कितना रिसोर्स हम इस पर्टिकुलर जगह से हम एक्सप्लोर कर पाएंगे, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे, तो उतना वो जो डेटा है, वो पोटेंशियल है, रिसोर्स पोटेंशियल है, वो G2 स्टेज में हम पता कराते हैं। और फिर G1 स्टेज क्या है, G1 स्टेज में इट इज हाईली डिटेल्ड, पूरा इट विल कंफर्म द साइज, इट विल कंफर्म द ग्रेड एज वेल एंड द इकोनॉमिक्स एज वेल, कहाँ से मिलेगा, कितना मिलेगा, और जहां जहां से मिलेगा तो कितने ग्रेड का मिलेगा, ग्रेड 1, ग्रेड 2, कौन से ग्रेड का किस जगह पे मिलेगा। तो वो जो सर्वे है वो G1 स्टेज पे होता है। सो वी आर एट ए G2 स्टेज। सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर इंडिया, बिकॉज हमारी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है रियर अर्थ एलिमेंट्स की, वो कम होगी चाइना की। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू remember from today's article. Thank you so much for watching. I will see you in the next video.